Hello, hi, good evening, everybody. Namaste, and a very warm welcome to the Khayal community. Namaste to all the Khayal community members, and a warm welcome to today's session with the Khayal community, that is Wiser Wednesdays. And on Wiser Wednesdays, we get doctors, experts, and psychologists who go ahead and discuss and talk about elder care and senior care. और आज का जो हमारा डिस्कशन है ख्याल कम्युनिटी के साथ, वो डॉक्टर पूजा के साथ है। और हम स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नींद या स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम सब इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी, क्योंकि नींद से ही हमारी पूरी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। और जैसे हम हमारी एज आगे बढ़ती है, एज वी कीप ऑन एजिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ पिक्यूलर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सीनियर्स के साथ और एल्डर्स के साथ नींद आने में। कभी कभी आपको नींद ठीक से आती नहीं है, ओके। और हम बहुत मजाक करके उस दिन ये भी बोल रहे थे कि लोग जब प्यार में होते हैं तब उनको नींद नहीं आती, बट हमें नींद नहीं आती है, इसके वजह से हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद जो अगला दिन है वो भी हमारा खराब हो जाता है। और नींद एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे जिंदगी का, हमारे फिजियोलॉजी का, जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, वो भी अपने आप को रिकवर करता है, हमारे थॉट्स को अरेंज करता है। और अगर हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है जितनी हमें बॉडी को जरूरत है, तो हमारे जो बॉडी का रिपेयर होता है या डिजीज फाइटिंग कैपेबिलिटी होता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है नींद की। और आजकल हम एक ये जो 5 इंच का जो एक विंडो है जो हमारा मोबाइल फोन है, उसमें भी बहुत टाइम डालते हैं, और उसके वजह से भी हमें नींद की इश्यूज आती है। हम टीवी भी कभी कभी देखते हैं, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम इतने थक जाते हैं कि हमें नींद नहीं आता। और ये तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और इसमें बहुत ही चीज जानने के लिए है। और इसीलिए आज हमने डॉक्टर पूजा को इनवाइट किया है टू टेल अस अबाउट स्लीप डिसऑर्डर्स एंड हाउ एवरीवन फ्रॉम द ख्याल कम्युनिटी can get better and peaceful sleep. So I'll tell you a little bit about Dr. Pooja. She is a practicing pulmonologist. उनको 7 साल का clinical experience है in the field, and she has also done her MBBS from DY Particle Medical College in Navi Mumbai, and she's done her post graduation in DNB Chest Medicine from KJ Somaiya Medical College. तो उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है, एंड शी इज गोइंग टू शेयर विद अस हर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग पीपल विद स्लीप डिसऑर्डर्स। तो a very warm welcome to Dr. Pooja from the Khayal community. Let me tell you, thank you for spending this evening with the Khayal community. Let me tell you a little bit about the Khayal community. We meet every day in the evening at 5:30, and all our members are 55 years and above, and they're very active members. So we have different activities from them every day, including games, sing-along sessions, yoga, and like today, we have invited an expert like you, who's going to tell us about the peculiar problems that elders and seniors face. So, Dr. Pooja, I give it up to you, and thank you once again from the Khayal community. Thank you very much for giving me this opportunity to invite me and in front of Khayal community. So I hope that I'll be able to brief them in short about sleep and important sleep disorders. So should I start the slide? Definitely, you can start. And let me tell you, all our community members are also very excited about this session. We had also run a small poll with our Khayal community members, and they have brought up a lot of questions. आपको बहुत सारे questions आपने हमें दिए थे. We have gone ahead and presented that to Dr. Pooja already, और उसके बारे में डॉक्टर आज बात करने वाली है after the presentation. So let's start with basic sleep. What is sleep? So मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ? I'm going to just introduce you to sleep, the sleep and wakefulness stages of sleep. How do we assess sleep? Classification of sleep disorders and common sleep disorders and their treatment.
So what is sleep? First of all, sleep is a regular, rapid, reversible neurobehavioral state where you have reduced awareness of the environment. It's also a vital sign which requires routine evaluation and treatment. And whenever we get sleep disorders, sleep, as you know, is required for proper brain function also. This is the cycle of sleep where you are asleep. The disorders of sleep are you have excessive daytime sleepiness or drowsiness. Sometimes you're not able to sleep, you're inattentive, or sometimes you're very awake or very alert. Insomnia, where you cannot sleep at all. Cognitive dysfunction, that is overstimulation of brain and not able to understand properly. Panic attacks, hallucinations. So these are all the disorders that we encounter when your sleep is disturbed. So you need a good balance between all these transmitters for your sleep and wakefulness. They are histamine, dopamine, norepinephrine, serotonin, and acetylcholine. Again, I'm not going to go very deep into this, but in our brain, there is a hypothalamus, which is a key control center for the sleep. So you have an off button there and an on button there. So this will promote sleep, and the off button will make you awake. So this is how the hormones act. They keep a balance, and this balance helps us to sleep. So the sleep wake switch, which I told you, processes regulating sleep. So there's a circadian rhythm in which there is light, there is melatonin. You must have heard about melatonin. When you say that नींद नहीं आ रही मुझे, many a times you hear doctors tell you that आप में melatonin कम है, and they give you melatonin supplement. So that is one of the important things you require to sleep. Then there is something known as a homeostatic sleep drive. मतलब you need a balanced sleep cycle, a proper biological clock to keep your sleep going, you know. And as this day progresses, this wake drive will reduce. Your homeostatic sleep drive will increase as you approach, you know, increase as you approach night. And then at a particular point, in that point, your nucleus, there one sleep center will be triggered, and that will release your hormone GABA, and then you will go for sleep. So there are, these are the processes, just simple circadian wake drive and a homeostatic sleep drive. So wherever this is dipping, there you're going to fall asleep. This dips where you see this dips. So these help you to sleep at this times. Like this 11 p.m. you can see 11 p.m. So this dips, this centers the trigger, and you go to sleep at that particular time with this sleep cycle. There are some stages of sleep. So there is wakefulness, then there is REM, that is rapid eye movement sleep. Here, usually you get dreams. Then you have stage 1, 2, 3, and 4, the different types which progress into deeper sleep. So again, there are some waves that you get in different stages of sleep. I will not go very deep in this, but you have some 4 types of waves in your brain going on. Like you see, ECG also has some ECG waves. In that way, EEG means electroencephalogram also has 4 types of waves. They are beta waves, alpha waves, theta waves, and delta waves. So usually you get all this sleep, like when you're drowsy, you get alpha waves. In stage 1, you get theta waves, then you get sleep spindles, and when you go to deeper sleep, then you get delta waves. So these are the some waves that you can see in sleep that you get. This is what we right now talked about: wakefulness, NREM, that is non-rapid eye movement sleep, and rapid eye movement sleep. So non-rapid eye movement, your eye movements are slow, your heart rate, blood pressure, respiratory rate, everything becomes slow. Your responsiveness is also slow. To hypoxia means to when your oxygen is low in the body, and hypercarbia when your carbon dioxide is high in the body. So body has very reduced responsiveness in this period. And in REM, which is the rapid eye movement, you have fast eyeball movements. You have your muscle tone is reduced here. So you can get muscle twitching and all. In this sleep, it's a very deep sleep where you have the lowest responsiveness. Also, you can get dreams in this part in this REM type of sleep. Now, assessment of sleep disorder, how we do that. So how do you measure sleep? Like you measure other things. Sleep is measured by something known as polysomnography or PSG. Here we record the brain waves known as the electroencephalogram. We record your eye movements, which is known as electrooculogram. Then your muscle movements, electromyogram. ECG, you all know. Oral nasal airflow to see how much oxygen is going when you're sleeping. Your nasal pressure, rib cage and your abdomen movements, and oximetry. Oximetry, everyone knows, that is your saturation, which you see on your index finger, which the pulse oximeter. So polysomnography is used to diagnose. It's a gold standard for sleep evaluation. How is your sleep? We come to know when we do this test of polysomnography.
So these are the diagnostic things that we do. Now the classification, there are many types of sleep disorder. You can have insomnia, where you don't get sleep at all, hypersomnolence, where you're getting a lot of sleep, narcolepsy is a daytime excessive sleepiness, breathing related disorders. In that, we have obstructive sleep apnea. In simple, I can tell you that if you're snoring, so when you're snoring, your windpipe closes, the air is not able to enter properly. And because of that, there is an obstruction, a mechanical obstruction in the airway. And because of that, the oxygen that you breathe in during sleep becomes low. And that is known as obstructive sleep apnea. Central sleep apnea. Apnea means when you are not breathing, suddenly your breath stops and there is no oxygen. Suddenly you have to get up. You feel that I'm not getting breath and you get up. So that is apnea. Central sleep apnea means here you have some problem in your brain center that is not helping you to sleep properly, and suddenly your oxygen dips and you feel that I have to get up. Sleep related hypoventilation, again the same, that you are not able to breathe in adequate oxygen. The amount of oxygen that you require during daytime, the same amount of oxygen is required during night also for the brain to function. The brain and the other organs are working 24 hours and they require the same amount of oxygen even in the night time, which when we don't reach or give them that amount of oxygen, that time we face these problems of sleep. Then there's circadian rhythm sleep wake disorders. There are some parasomnias, that is nightmare disorder or REM sleep behavior disorder. There's a restless leg syndrome, and there's sometimes medicine induced sleep disorders also. तो डॉक्टर पूजा, जब हम बहुत बार बोलते हैं Hmm. कि बस मुझे नींद नहीं आती है, तो इसके पीछे जैसे आप बता रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे कारण हो हाँ, सकती है, एक करेक्ट? साथ भी हो सकती है। जैसे अगर इंसोम्निया है तो अगर आपने मेडिसिन इंड्यूस हो सकता है इंसोम्निया, एक्सेसिव कैफीन इंटेक हो सकता है। आगे के स्लाइड्स में आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ इंसोम्निया के स्लाइड। ओके, तो ये तो इतना इतना इजी नहीं है नींद को समझना, इतना नहीं। हमें जैसे लगता है, कभी कभी हम बोलते हम्म, हैं बस जैसे आप, हमें तो बहुत बार पता होगा, बच्चे सोते नहीं हम्म, तो हम्म, उनके माँ बाप उनको बोलते हैं जाके आग बंद कर दो और हम्म, आपको नींद आ जाएगी। तो ये हम्म, इतना सिंपल 1 2 3 नहीं है, वाला स्टेप नहीं है, नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। और लगती है। जैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आप जानते हैं सीनियर्स है, तो हम्म, उनमें और हेल्थ रिलेटेड और एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते आते हैं, हैं। राइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब तक तो ये हमें थोड़ा रॉकेट साइंस जैसे लगता है, ओके, ये तो इसीलिए हम मैं एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं आप हाँ, जैसे, हाँ। जो नहीं, मैं हमें। आपको इन शॉर्ट बहुत ही इजी बताऊंगी। सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे ये सब स्लाइड्स में से, हम सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे जो हम हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है। जरूर। बाकी तो हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसेंगे। तो इंसोम्निया, व्हाट इज इंसोम्निया? जिसमें यू हैव डिससैटिस्फैक्शन विद स्लीप, डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep और डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्लीप ऑल्सो। बार बार नींद टूट जाती है, डिफिकल्टी अगेन रिटर्निंग टू स्लीप आफ्टर अवेकनिंग, तो ये सब इंसोम्निया में आता है। एंड इसका क्राइटेरिया है दैट एटलीस्ट 3 nights पर वीक फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर आप 3 night पर वीक नहीं सो पा रहे फॉर एटलीस्ट 3 months, देन यू हैव इंसोम्निया। दिस इज हाउ यू डायग्नोस। इंसोम्निया में क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। मे बी इट कैन बी बिकॉज कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, या कोई आप अराउजल कोई स्टिमुलेंट्स ले रहे हो। सो दैट कैन कॉज हाइपर अराउजल। बेड टाइम पे आपको नींद ही नहीं आती, या बहुत सिवियर मसल टेंशन है, बहुत बार मसल क्रैम्प्स है। Psychologically, if you're overthinking also and your brain is not at rest, then also you can have insomnia। आप सो ही नहीं पाते, या आप सो रहे and your brain is working continuously, it's overthinking and आप उठ जाते हैं, you're not able to sleep that time। तो यूजुअली जो रेशियो देखा गया है मेल टू फीमेल में है कि 1.5:1। दैट मीन्स मेल्स को ज्यादा स्लीप की प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा नींद नहीं आती। दिस इज व्हाट यू सी, इट्स मोर इन मेल्स। देयर आर सम ओके। मेडिकल डिसऑर्डर्स जो आप बोल रहे थे। सो एज योर एज, विथ एजिंग जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसमें जब आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एस्थमा होता है, या आपको किडनी प्रॉब्लम होता है, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, देन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स मतलब हाइपर एसिडिटी होती है, फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब मसल के प्रॉब्लम्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपको पता होगा, जब आपके बोन्स जो है वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब बोन्स जो है ब्लड रिलेटेड, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, कभी भी आपको परेशानी होती है। जॉइंट पेन बहुत सिवियर होते हैं रात को। दिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, तो यू डोंट अंडरस्टैंड, बट नाइट टाइम ना योर मसल्स बिकम रिलैक्स्ड, एंड दैट टाइम
यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ पेन, एंड फिर आपको समझ में आता है कि मुझे इतना जॉइंट पेन कैसे हो रहा है, दिन में तो नहीं हो रहा था, बिकॉज दिन में यू आर कीपिंग योर मसल्स एक्टिव, तो तभी आपको नहीं रियलाइज होता, बट जब रात को मसल रिलैक्स होते हैं, सडनली यू फील दैट पेन कि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ आर्थराइट, दैट टाइम यू अंडरस्टैंड दैट आपको आर्थराइटिस है। तो यूजुअली तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली मूवमेंट पे पता चलता है। फिर डायबिटीज, अगर आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल नहीं है, इफ यू हैव हाई शुगर लेवल्स, देन आपको बार बार नींद टूटती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बिकॉज एक हार्मोन जनरेट होती है ब्रेन में, एंडोर्फिन्स बोलते हैं, तो हार्मोन जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ दैट अगेन एंड अगेन पेशेंट की नींद टूटती है एंड दे हैव टू गो फॉर वॉशरूम। तो ये डायबिटीज में इट्स बीन सीन। देन पार्किंसंस है, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, यहाँ पे नींद आना ही एक प्रॉब्लम हो जाता है, दैट यू डोंट गेट स्लीप। Then you have menopause. So after a certain age in females, like maybe after 45 or 50 years, there are some hormonal changes. Estrogen जो है उसके लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, जो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो तब उनको वापस स्लीप में प्रॉब्लम आ सकती है विथ मेनोपॉज। फिर कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, पैनिक डिसऑर्डर, आपने नाम सुने होंगे, शिजोफ्रेनिया। और सब मेडिसिन है, जैसे देयर इज अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर आप ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड ले रहे हैं आप फॉर एनीथिंग, फॉर आर्थराइटिस और फॉर लंग, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एस्थमा, और यू आर टेकिंग सम मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, सो ये सब मेडिसिन से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है, दे हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ इंसोम्निया। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, वेयर यू नो ट्विंस में फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स, ये तो हमने इतने नहीं देखे, सो आई कांट कमेंट मोर ऑन दैट। तो एंड देर आर सम अदर फैक्टर्स, जिसमें आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है, या हम स्लीप में ऑल्सो कॉर्टिजोल लेवल्स दिखते हैं, पर्टिकुलरली शाम के टाइम में, क्योंकि शाम के टाइम में ना आपके स्लीप आवर्स शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी लेथार्जिक एंड रिस्पॉन्सिवनेस कम होती है। सो उसमें कॉर्टिसोल और एसीटीएच करके ये दो हार्मोन होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ये मेजर करते हैं देखने के लिए कि हाउ योर स्लीप इज अफेक्टेड विद दैट। आपने देखा होगा बहुत बार डॉक्टर्स कॉर्टिसोल 5 पीएम का मांगते हैं, बिकॉज वो टाइम पे हम देखते हैं कि आपका कॉर्टिसोल का लेवल कितना उतना इनफ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जहां आप सो सकते हैं। फिर जब इंसोम्निया होगा तो आपको ये सब जो डिप्रेशन एंजाइटी सिम्टम्स है, ये सब आपके बढ़ सकते हैं विद इंसोम्निया। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज दैट यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, यू रिड्यूस दिस डे टाइम फंक्शन, एंड देन उसके लिए हम वी गिव ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। तो मेडिसिन तो है ही, बट साइकोसोशल में वी गिव रिलैक्सेशन थेरेपी, स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी ड्यूरिंग डे, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब हम आपको स्लीप हाइजीन सिखाते हैं। स्लीप हाइजीन में आपको बताऊंगी क्या है। तो ये है स्लीप हाइजीन, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ये आप देख लीजिए, बिकॉज दिस आई टेल ऑल माई पेशेंट्स दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ स्लीप हाइजीन व्हेनेवर दे कम टू मी कि हमें नींद नहीं आ रही है। मैं हमेशा उनका पहले डे टाइम का रूटीन पैटर्न पूछती हूँ, उनका नाइट टाइम का पैटर्न पूछती हूँ, उनको So, पूछती Dr. हूँ Pooja, I'll just stop you for a quick minute. एक टेक्निकलिटी है यहाँ पे, हम्म, अगर आप एनोटेशन वहाँ पे बंद कर सकते हैं, यू कैन गो टू योर प्रेजेंटेशन एंड ओपन अप क्लोज एनोटेशन। तो ये जब लोग अपने फोन पे कुछ भी मार्क करते हैं तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा बिकॉज ओके ऑफ जूम। ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल माई पेशेंट्स डेली, कि स्लीप हाइजीन आपको मेंटेन करना है। व्हाट इज स्लीप हाइजीन? So these are some behaviors which harm your sleep. You have to avoid your naps during daytime. आपको दिन में सोना नहीं है, okay? आपको अर्ली दिन में उठना है। You have to try to get up by 6 or 7 o'clock. Don't take any afternoon naps. Go for regular exercise in the morning and evening. Maintain a very regular sleep schedule. Like if you're sleeping every day at 10 o'clock, then sleep every day at 10 o'clock. Avoid stimulants. So usually I tell patients कि आपको टी कॉफी ना 5 PM के बाद नहीं लेना है, टी कॉफी अल्कोहल और एनी बेवरेजेस, बिकॉज ये हाइपर स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो ये स्टिमुलेट आपके ब्रेन को फिर एक्टिवेट कर देते हैं आफ्टर 5 इफ यू टेक इट, एंड देन जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल, एसीटीएच, जो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा था टू मेक यू स्लीप, वो सब हैम्पर हो जाता है बिकॉज ऑफ योर कैफीन एंड निकोटिन, दैट इज टी कॉफी। एंड डू नॉट सी द क्लॉक व्हेन अवेक इन बेड। तो जब आप एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स व्हेन यू गो टू बेड, तो मैं बोलती हूँ यू शुड नॉट सी द मोबाइल फोन फॉर एटलीस्ट 1 आवर। आपका स्क्रीन टाइम जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको ना मोबाइल देखना है, ना आपको कोई बुक पढ़ना है। what best you can do is you can do the meditation, you can do deep breathing exercises that will help you relax. With meditation आपका brain relax होगा, calm होगा, and that will make you sleep.
तो ये स्लीप हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स कि आप ये करेंगे ना तो आपको कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको इंसोम्निया है। तो ये स्लीप हाइजीन आप देख लीजिए एक बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देन नार्कोलेप्सी है जिसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होते हैं, आपको बार बार अर्ज होती है कि आप सोए, आप कहीं भी सो जाते हैं। एंड अगर आपको ये भी 3 times पर वीक होता है फॉर एटलीस्ट 3 months, देन यू हैव नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी के अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें आपके स्लीप जो है वो अफेक्ट हो जाती है, 20 to 60% पेशेंट्स में दिखता है। बहुत बार इसमें स्लीप पैरालिसिस भी होता है, अगर आपने सुना होगा, जब आप एक्सेसिवली सोते हैं तो मसल्स जो है ना वो आपकी कंटिन्यूसली रिलैक्स स्टेट में चले जाता है, बिकॉज द मसल्स आर ऑलवेज, उनमें हमेशा एक ट्यूनिंग होता है आपके मसल में कि जब हम सो रहे तो मसल को रिलैक्स होंगे। तो जब आप ज्यादा सोते हैं तो मसल ओवर रिलैक्स हो जाते हैं एंड सडनली देन दे गो इनटू पैरालिसिस काइंड ऑफ अ स्टेट जहां आपकी मूवमेंट ही आप नहीं कर पा रहे हो, नॉट एबल टू गेट अप बिकॉज आपकी मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्लीप ड्यूरिंग डे। तो इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। अगेन देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स फॉर दैट, साइकोसोशल थेरेपीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। हाइपरसोमनोलेसेंस भी सेम है, जब आपको रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्लीप है ड्यूरिंग डे या प्रोलॉन्ग नाइट स्लीप है, टिपिकली मोर देन 9 hours, या आपको डिफिकल्ट हो रहा है फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस के साइकिल में आने के लिए, सो दिस इज नोन एज हाइपरसोमनोलेसेंस। दिस विल अफेक्ट योर डे टाइम एक्टिविटीज अगेन, so it can be seen in depression and many other things. It is mostly seen in the second or third decade, that means 20 to 30 years में usually दिखता है ये। ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर या स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। आपने सुना होगा कि पीपल आस्क, पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप समटाइम्स, वो बोलते हैं कि माय पार्टनर स्नोर्स, बहुत खराटे मारते हैं। बहुत बार लोगों लोगों को पहले लगता था लाइक ओल्डन टाइम्स में कि जो खराटे लेते हैं दैट मीन्स दे हैव द बेस्ट स्लीप, ऐसे उनको लगता था कि वाओ ये खराटे ले रहा है तो इसकी सबसे बेस्ट स्लीप होगी, बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि जो खराटे लेते हैं, खराटे इज अ स्लीप डिसऑर्डर। तो स्नोरिंग का ही मेडिकल नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जिसमें आप खराटे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपकी एयरवे जो है ना वो बंद हो जाती है, तो जो एयर जाती है वो एयर जा नहीं पाती आपके एयरवे में, बिकॉज ऑफ दैट आपके वोकल कॉर्ड से एयर बहुत बहुत डिफिकल्टी से जाती है और वोकल कॉर्ड्स बजने लगते हैं, आपका एयरवे बजता है। उसको स्नोरिंग बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, योर बॉडी इज ट्राइंग टू गेट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जा नहीं रही है, एयर घुसने का ट्राई कर रही है लेकिन नहीं जा पा रही डीप, क्योंकि जैसे ही आपकी स्लीप डीप होगी वैसे आपका जो एयरवे है वो धीरे धीरे बंद होता है। इनमें एज डीपर स्लीप वैसे आपका एयरवे और ज्यादा बंद होता है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। सो स्नोरिंग इज नोन एज स्लीप एपनिया, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सेंट्रल मतलब अगर आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो सेंट्रल में भी हो सकता है। एपनिया मतलब अगेन जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में बिल्कुल नहीं है एंड सडनली यू फील कि मुझे ब्रेथ ही नहीं आ रही एंड यू जस्ट गेट अप, so that is known as apnea, lack of oxygen in your body। आपका इसमें रिडक्शन ऑफ एयर फ्लो भी हो जाता है, एब्सेंट एयर फ्लो भी हो जाता है। और ये हम वी डायग्नोज विद पॉलीसोमनोग्राफी। इसमें हम एक इंडेक्स देखते हैं, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। मतलब एपनिया मतलब ऑक्सीजन इज नॉट देयर इन द बॉडी एट ऑल, हाइपोपनिया मतलब लो है आपके बॉडी में ऑक्सीजन, और उसका एक रेशियो देखते हैं देखने के लिए कि आपको ये बीमारी है स्लीप एपनिया की या नहीं है। आई थिंक स्लीप एपनिया आपने सुना होगा, इट इज वेरी कॉमन नाउ, पीपल हैव गॉटन अवेयरनेस ऑफ स्लीप एपनिया। So obstructive sleep apnea, again you will feel that why are we going through all these things, but there are some complications of sleep apnea जो हमको पहले आते हैं in life, like you get blood pressure, you get diabetes, you get cholesterol, and then finally you understand that you have sleep apnea, but you don't know कि आपको blood pressure, diabetes, cholesterol या heart का problem आया because सबसे पहले आपको स्लीप एपनिया हुआ था, और स्लीप एपनिया डायग्नोस सबसे लेट होता है, और ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपके पहले डायग्नोस हो जाते हैं और बाद में आपका स्लीप एपनिया डायग्नोस होता है। तो स्लीप एपनिया में आपका हम एक इंडेक्स देखते हैं, जो 15 के ऊपर होगा तो आपको सिवियर स्लीप एपनिया है। इसमें क्या होता है, स्नोरिंग, ब्रीदिंग पॉजेस, डे टाइम बहुत स्लीपीनेस हो जाता है, फटीग होता है, आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, यू आर मच लेजी, यू आर नॉट एबल टू गेट अप। मॉर्निंग में भी आप फ्रेश नहीं होते, आप बोलते हैं कि आई एम फीलिंग कि मैं वापस सो जाऊँ, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, एंड या आप कहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। तो स्नोरिंग होता है, मेनी टाइम पार्टनर कंप्लेंट्स आई एम नॉट एबल टू स्लीप, बहुत ज्यादा स्नोरिंग हो जाता है, और इसकी वजह से आपका फोकस काम में खराब हो जाता है बिकॉज यू आर वेरी स्लीपी, मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। ऐसे लोगों को यूजुअली हम बोलते हैं कि डोंट ड्राइव ड्यूरिंग डे टाइम और डोंट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स एट वर्क बिकॉज सडनली यू कैन फॉल asleep and you can cause accident।
ऑल्सो इट कैन कॉज ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट बर्न, एसिडिटी, मॉर्निंग हेडेक्स। तो ये सब जो है ये भी स्लीप एपनिया की वजह से है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नोटिस इन स्लीप एपनिया है कि अगर आप बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी, दैट इज अ वेरी मेजर थिंग कॉज इन स्लीप एपनिया। अगर आपका BMI मोर देन 30 है, neck circumference more than 16 in women and more than 17 in men, then you are obese and then you can get the sleep apnea. तो obesity में reduction of weight is also very important sleep apnea के लिए, in the treatment of sleep apnea. इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। इसमें एयरवे ट्रीटमेंट ये है कि लोग पूछते हैं कि हम क्या करें अगर हमें स्लीप एपनिया है या अगर हमारा एयरवे बंद हो रहा है तो हम क्या करें रात को नींद में ना आप दवाई ले सकते हैं ना आप, मुझे किसी पेशेंट ने पूछा क्या मैं योगा करूं, मैंने बोला डीप स्लीप में आप उठ के तो योगा नहीं कर सकते आपका एयरवे ओपन करने के लिए, आपका एयरवे बंद हो रहा है। अब जब बंद हो रहा है और आप सो रहे हैं, आप क्या करोगे? तो तब हमने बोला कि हम CPAP यूज करते हैं। CPAP मतलब कि आपके एयरवे को कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एक प्रेशर जाता है जो आपके एयरवे को जोर से खोलता है और खुला ही रखता है रात भर, उसको हम CPAP बोलते हैं। उसका हम मेजरमेंट्स करते हैं कि आपके एयरवे का प्रेशर कितना है, क्योंकि एयरवे प्रेशर यूजुअली 4 to 20 के बीच में होता है और सबका प्रेशर अलग होता है। तो तब हम मेजर करते हैं कि आपका प्रेशर क्या है, आपका एयरवे कौन से प्रेशर में खुला रहेगा रात भर एंड आप अच्छा ऑक्सीजन ले पाओगे। दूसरे ट्रीटमेंट में जो हमने बोला वेट लॉस, अवॉइडिंग द सुपाइन स्लीप पोजिशन, मतलब कि सीधा मत लेटिए, ऑलवेज यू स्लीप इन अ लैटरल, मतलब एक साइड पे सोइए, या बेस्ट पोजिशन है कि पेट पे सोइए। द बेस्ट पोजिशन वेर यू गेट द मोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीजन जब आप पेट पे सोते हैं, इसको बोलते हैं प्रोन पोजिशन। ये आपने देखा होगा कोविड में कि सबको उल्टा लिटा रहे थे, आपने वीडियोस देखे होंगे कोविड में, ऑल पेशेंट, सब पेशेंट जिसके ऑक्सीजन कम हो रहे थे सबको प्रोन कर रहे थे, उल्टा लिटा रहे थे। क्यों उल्टा लिटा रहे थे? बिकॉज आपका लंग का जो सरकमफ्रेंस है वो पोस्टीरियरली पीछे, लंग आपका बहुत हायर सरकमफ्रेंस है और जो अपना ऑक्सीजन है वो पीछे के साइड पे बहुत ज्यादा आता है, इन द पीछे के लंग के साइड में। दैट इज व्हाई वी गिव अ प्रोन पोजिशन, और इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होता एंड पेशेंट गेट्स मोर ऑक्सीजन इन प्रोन या पेट पे सोना। इस सेंट्रल स्लीप एपनिया जिसमें आपको बहुत टाइप के सेंट्रल स्लीप एपनिया, अगर आई विल नॉट गो इन डिटेल्स क्योंकि इसमें आपके सिर्फ ब्रेन में प्रॉब्लम है, इतना ही हम ये कर सकते हैं। सो आई विल नॉट गो मच डिटेल्स इन दिस। इसमें इफ यू वांट टू आस्क मी क्वेश्चंस टिल दिस यू कैन आस्क, और मैं आगे के आपको दिखा दूंगी स्लाइड्स वगैरह। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा। एक तो हमें बात अभी पता चली है कि नींद बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एनीवन, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, और वो ना आने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड आल्सो मेडिकल चेंजेस दैट वी विल हैव टू गो अहेड एंड डू इन आवर लाइफ। और सबको जो नींद नहीं आती है उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, राइट? तो we have some of our questions. If you want, I can ask them now. So we can take those now. Otherwise, even they'll get bored if we just go on with the slides. I know you will be surprised that our members really appreciate doctors and experts who come और जो हमें इतनी सारी important चीजें बताती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। And see, on a daily basis, we do a lot of enjoyment, we do a lot of engaging activities, but हमें ये नई नई चीजें और अपने बारे में जो ये नया स्टेज है सीनियर सिटीजन्स का, वो जैसे हम जा रहे हैं उसके बारे में जानने को भी बहुत इंटरेस्ट होता है हमारे ख्याल कम्युनिटी में। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि वी हैव वन ऑफ अवर मेंबर्स हु इज, जिनको स्लीपिंग टैबलेट का एक लत लग गई है, उनको अगर स्लीपिंग टैबलेट उन्होंने नहीं खाई रात को तो उन्हें नींद नहीं आती। तो यस, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे मैंने स्लीप हाइजीन का बोला था कि आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है, आपको बहुत उनको जल्दी उठना है मॉर्निंग में, गो फॉर एक्सरसाइज, नॉट एट ऑल स्लीप इन द डे टाइम, बिल्कुल भी नहीं, नॉट टेक एनी बेवरेजेस शाम के बाद, जैसे मैंने बोला था कोई भी स्टिमुलेंट्स नहीं लेने उनको शाम को जिससे उनकी स्लीप अफेक्ट हो। एंड उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर उनको नींद नहीं भी आ रही देन आल्सो ही हैज टू गो टू बेड एंड ही हैज टू ट्राई क्लोजिंग हिज आईज एंड स्लीप। एंड अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है देन वी सी कि वाई की नींद क्यों नहीं आ रही, इज टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन जिसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशन भी मैंने आपको दिखाए थे जिसमें नींद हैम्पर हो सकती है। और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, हाउ इज इज लाइफस्टाइल, हाउ इज इज डेली डे टाइम कैसा है, वो ज्यादा नैप डे टाइम में ले रहे हैं क्या तभी, तो ये सब हमको अवॉइड करना है, अदरवाइज इट विल हैम्पर योर स्लीप। और फिर भी आपको स्लीपिंग पिल्स लेने ही पड़ रहे हैं तो आपका सर्कैडियन साइकिल कैसा है, हम फिर आपके हार्मोन्स मेजर करेंगे कि वो कैसे है,
हाउ इज योर ब्रेन, बिकॉज विद एज ना ब्रेन फंक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है, न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के थोड़े कम हो जाते हैं, मेनी पीपल गेट पार्किंसंस या डिमेंशिया, तो उसमें भी फिर थोड़ा स्लीप स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. So usually when they say कि we are just addicted to pills, we always give them a withdrawal phase. हम एक withdrawal phase देते हैं, इसमें हम उनको बोलते हैं कि आप ये पूरा लाइफस्टाइल एंड आपका स्लीप हाइजीन बदलिए. And actually many people were able to get off sleeping pills with that. ओके ओके, तो एक तो स्लीपिंग पिल हमें खुद से तो लेनी नहीं चाहिए, नहीं. अगर हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है तो ही लेनी चाहिए, करेक्ट? इनफैक्ट इट इज बेटर कि हम मेलेटोनिन भी सप्लीमेंट्स देते हैं लोगों को जब उनको नींद नहीं आती है, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम उनके हार्मोन्स मेजर करके उनको वो दे जो उनको चाहिए, जो उनके स्लीप को स्टिमुलेट करे. एंड नॉट मेजर्ड द डोज. स्लीप, या एंड नॉट द स्लीपिंग पिल्स व्हिच यू टेक एनी हाउ विथ, आपको वो प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन से ही लेने पड़ेंगे फ्रॉम योर डॉक्टर. You also cannot take alcohol and sleeping pills together. It causes a very bad reaction, very bad interaction. Patients can almost slip into coma also. Okay, so it's a very serious Very serious, yeah. problems can go, especially जब आप दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उसे अल्कोहल के साथ या कोई और स्टिमुलेंट के साथ मिक्स करते हैं. ओके, तो बहुत लोगों को और एक एडिक्शन है, और आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ द सेम एडिक्शन, एंड दैट इज द फोन. हमें बहुत बार हम फोन यूज करते हैं, अभी आदत सी हो गई है, सब लोग फोन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे है, हम फेसबुक पे है, न्यूज देखते हैं. तो इसके लिए कोई आपके पास एक फॉर्मेट है जो हम फॉलो कर सकते हैं, लाइक अ स्लीप रूटीन जो हम हर रात को फॉलो कर सकते हैं? तो फोन के लिए भी एक्चुअली एक फॉर्मेट है, एंड दिस वाज गिवन बाय माय कलीग व्हिच इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, एंड वो बहुत अच्छा फॉर्मेट था, मेरे पास अब वो है नहीं शेयर करने के लिए, बट वो ऐसा था कि आप अगर फोन देख रहे हैं, सपोज आपने 20 मिनट तक फोन देखा है, उसके बाद जस्ट शट डाउन योर फोन, उसके बाद आप 20 मिनट्स फोन नहीं देखेंगे. 20 मिनट्स देन यू सी एनीवेयर, नेचर देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखिए, ब्लिंक योर आईज अगेन एंड अगेन, बिकॉज व्हेन यू ब्लिंक योर आईज तो आपके आंख जो है, आंखों में जो लेयर्स आते हैं वो सब क्लियर होता है, ल्यूब्रिकेंट टीयर्स जो होते हैं वो भी हमको अपने आईज के स्टिमुलेट करने हैं, और जो कंटिन्यूस ब्लर, जो बहुत आईज ब्लर हो जाते हैं, so you have to just shut down after a particular time and start blinking, and just see 20 minutes, you see outside, see anywhere 20 minutes, but don't see any digital screen for 20 minutes. और ये आपको रिपीट करना है कि आप जितनी बार देखेंगे उसके बाद आपको एक शट डाउन लाना है उतना 20 मिनट्स का, और कोई भी डिजिटल नहीं, स्क्रीन नहीं देखना वो टाइम पे. नॉट इवन बुक्स, नॉट इवन बुक्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से इवन बुक्स ऑल्सो वी से नॉट टू रीड द बुक्स ऑल्सो. ओके, सो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के. तो एक बात तो है कि इट इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन. हमें अपने आप को याद दिलाना है कि अगर मुझे ठीक से नींद नहीं आएगी तो मेरे हेल्थ को इफेक्ट होगा, तो मेरे हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इसीलिए मुझे फोन बंद करना चाहिए. वेरी गुड डॉक्टर. तो आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मेंबर्स ने पूछा था. बहुत बार हमारे मेंबर्स ने ऐसे भी बोला है कि सबकॉन्शियसली या शाम के वक्त स्पेशली उनके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग चीजें के बारे में वो सोचते रहते हैं, और उसके वजह से उन्हें नींद नहीं आती. तो इज देयर एनी रिलैक्सेशन टेक्निक दैट दे कैन डू? तो रिलैक्सेशन टेक्निक इज, जब आप ओवरथिंक करने लगते हैं तब आपका ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है ना, फिर आप सो ही नहीं पाते, बिकॉज योर ब्रेन इज कंटिन्यूसली एंगेज्ड इन दैट एक्टिविटी. तो यू आर नॉट ट्राइंग आप आपके ब्रेन को रिलैक्स होने का ही टाइम नहीं दे रहे. सो दैट टाइम जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. वी जस्ट से पेशेंट्स को कि नॉर्मल जो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 seconds, breathe out, again breathe in, hold your breath for 10 seconds, breathe out. You just have to repeat this cycle of breathing in and out. तो जैसे आप ब्रीद इन करते हैं, विथ एवरी गुड रेस्पिरेशन यू ऑल्सो ब्रीद इन डीपली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड अ लॉट फॉर योर ब्रेन एंड ऑक्सीजन, फॉर योर ब्रेन एंड हार्ट. हमें लगता है कि ऑक्सीजन हम सिर्फ दिन के टाइम पे ले रहे हैं, बट रात के टाइम में ऑल्सो आर ऑर्गन्स आर वर्किंग, इवन इफ वी आर स्लीपिंग all our organs are working and they require 24 hours oxygen. उसकी वजह से deep breathing and meditation will help you much in relaxation and overthinking. So that will be, इसलिए मैं रात को when patients try to sleep, I always tell them that half an hour before or 1 hour before start doing some meditation and relaxation therapies and breathing exercises. तो उससे आपके lungs में भी you'll have a good strength of your muscles,
and you'll also have a good sleep because your brain will be calm and relaxed. ओके, सो डॉक्टर पूजा, आप बहुत खुश हो गए ये जान के कि एवरी थर्सडे हम योगा करते हैं, सीनियर योगा हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स हैव आल्सो लर्न द रिलैक्सेशन टेक्निक, सो दैट इज समथिंग वो रोज रात को जरूर कर सकते हैं। एंड ये जो टेक्निक आपने बताया है बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, ये मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। ब्रीद इन एंड होल्ड द ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स एंड ब्रीद आउट, और ये करते रहना जब तक नींद नहीं आती आपको। यस, बहुत सिंपल है। इट विल बी वेरी वेरी सिंपल, एंड आपके लंग्स भी इसमें हेल्दी रहेंगे। यू नो मेनी टाइम्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जब होते हैं पेशेंट्स को, तब हम उनको ये फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, तो इसमें आपके लंग्स भी हेल्दी रहते हैं, मसल स्ट्रेंथन होते हैं, एंड प्लस आपके ऑक्सीजन जो इनटेक होती है विद एवरी डीप ब्रेथ वो इम्प्रूव होती है। ओके ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन डॉक्टर। आई मीन मैं आपको अभी से ये कहता हूं कि आपका जो सेशन है वो एकदम इट्स लाइक गोल्ड। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई एम श्योर हमारे मेंबर्स वहां पे नोट्स बना रहे हैं इसका। तो ये बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और आपने इतने सारे आंसर्स और सॉल्यूशंस हमें ऑलरेडी दे दिए हैं। इट्स जस्ट अनदर 20 minutes वी हैव विद डॉक्टर, सो आई एम गोइंग टू आस्क वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर शी कैन गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन। और ये बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दोपहर को इन द आफ्टरनून हमें नींद आती है और हम सो जाते हैं, और उसके वजह से रात को हमें नींद नहीं आती। तो ये बहुत लोगों ने ये पूछा है इसके बारे में, तो इसका हल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले है कि फर्स्ट ऑलवेज स्लीप अर्ली एंड ऑलवेज गेट अप अर्ली, क्योंकि अगर आप लेट उठते हैं, आपका दिन लेट शुरू होता है, देन यू गेट वेरी फटीग्ड, यू फील वेरी लेजी, एंड आप फिर दोपहर को सोने चले जाते हैं। यू फील कि नहीं, यू नो आई एम वेरी टायर्ड, आप वो एक्टिविटी लेवल नहीं कर पाते। अगर आप जल्दी उठते हैं, यू गो फॉर एक्सरसाइज। विथ एक्सरसाइज ऑल्सो अगेन योर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज एवरी डे। आप रोज खाना खा रहे हैं, तो व्हेन आई टेल माय पेशेंट व्हेन यू आर ईटिंग एवरी डे यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे, बिकॉज विथ एक्सरसाइज आपके मसल्स जो है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर मसल्स, यू नो, एंड फॉर आवर बोन्स ऑल्सो, बिकॉज फिर वो एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। और ये एक्सरसाइज हम हमेशा तब स्टार्ट करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, लाइक आर्थराइटिस या कुछ, और फिर बोलते हैं कि स्टार्ट, या सीओपीडी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गया, फिर हमने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। एज यू आर ईटिंग एवरी डे, यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे। उससे दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव अ लॉट, कि आप डे टाइम नैपिंग ज्यादा नहीं करेंगे फिर तो। और इनफैक्ट और फिर यू हैव टू आल्सो अवॉइड द स्टिमुलेंट्स, बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट्स एंड लेना, बट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज एंड गेटिंग अप अर्ली एंड स्लीपिंग अर्ली। ओके, तो प्रिवेंटिव केयर आप कह रहे हैं, जो हमें पहले से ही एक्सरसाइज करना चाहिए, पहले से ही ये अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए। हमें इसके लिए रुकना नहीं चाहिए कि कुछ हो गया हमारे पास और तब हम इमरजेंसी में जाके कुछ न कुछ संभालने के ट्राई करते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि हम नेचुरली जो लाइट के साथ अगर उठेंगे और सोएंगे, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट। बिकॉज अगर आप 100-200 साल पहले भी अगर ले लेते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था, हमारे पास ये जो हम दिन को रात को दिन बनाते हैं ये क्षमता तो नहीं थी। हम लोग शिफ्ट में, पहले आई डोंट थिंक राजा महाराजा के टाइम में कोई शिफ्ट में भी काम करता था। तो वो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर ही था, हम 7-8 बजे सो जाते थे, जैसे द सनसेट वुड हैपन, एंड अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे हम उठ जाते थे। तो वी वर फॉलोइंग द रिदम ऑफ द नेचर। ये काफी साइंटिफिक भी था, बिकॉज इफ यू सी कि अभी के जनरेशन में पीपल आर गेटिंग अप लेट, एंड मेजॉरिटी लाइक 95 मोर देन 95% है विटामिन डी डेफिशिएंसीज। विटामिन डी आपको कोई फूड से नहीं मिलता, यू गेट इट फ्रॉम योर अर्ली सनलाइट। जो आप 6 बजे उठते हैं ना, आपको वही सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, आपको उसके बाद नहीं मिलता सनलाइट विटामिन डी। एंड फिर उसके बाद आपको सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, बिकॉज हमेशा इफ यू गो टू डॉक्टर दे विल टेल कि आपका विटामिन डी कम है, एंड स्टार्ट यू ऑन सप्लीमेंट्स, बिकॉज आपको कोई फूड से विटामिन डी नहीं मिलता। यू हैव टू गो इन अर्ली सन 6 o'clock फॉर योर विटामिन डी। तो ये है कि जब पुराने जमाने में वो पीपल डिड नॉट हैव दिस डेफिशिएंसीज, क्योंकि वो जल्दी उठते थे। अब जल्दी उठते ही नहीं लोग, तो वो सन देखते ही नहीं। जब वो सन देखते हैं तो 12 बजे के यूवी रेज होते हैं, यू कैन गेट विटामिन डी एट दैट टाइम। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑलराइट, सो डॉक्टर, हम आगे जा सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के साथ, और जो और क्वेश्चंस आएंगे वी विल टेक इट ड्यूरिंग द लास्ट 10 minutes। हम एक Q&A सेशन रखेंगे
वेयर हमारे मेंबर्स को अगर कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर पूजा को पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में क्वेश्चन जरूर डालिएगा, एंड वी विल ट्राई टू पुट अप दैट क्वेश्चन टू डॉक्टर पूजा. और उसके बाद वी विल आल्सो ट्राई टू गेट यू इंफॉर्मेशन वेयर वी कैन गेट इन टच विद डॉक्टर पूजा. अगर आपको और कंसल्टेशन की जरूरत है और आपको स्लीप डिसऑर्डर है या नींद की प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ जरूर बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे देयर आर मेनी स्लीप डिसऑर्डर्स. अब हम फिर और भी अब हम जस्ट इन शॉर्ट विल कॉमन चीजें जो आपने सुनी होगी उसमें बात करेंगे. जैसे स्लीप वॉकिंग है. मेनी अ टाइम स्लीप वॉकिंग में पेशेंट गेट्स अप, आईज ओपन होते हैं एंड पेशेंट एंड ही इज कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव और वो स्लीप वॉक करने लगते हैं और वो उठते ही नहीं. तो ये फिर देर आर स्लीप टेरर्स जिसमें सडनली आपके आईज जो है प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, आपकी मोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है. तो इसको स्लीप टेरर बोलते हैं. सडनली यू फील, आपको नाइटमेयर भी यही टाइम पे आ सकते हैं इन दिस स्लीप. फिर आपको कंफ्यूजनल अराउजल्स आप देखेंगे वो बच्चों में होते हैं, बिकॉज बच्चों में ना स्लीप साइकिल एज सच होता नहीं है. उनका सर्कैडियन रिदम या बॉडी क्लॉक जो है ना, it's not developed, it is just developing when the child is very small. So they sleep most of the time. When you see that children are sleeping more than 15-16 hours because तब उनका circadian rhythm या body clock develop नहीं हुआ होता है. उनके hormones जो है sleep related वो भी they are just forming. So that time the children they sleep lot more than 14-15 hours. As the child grows up, then the body clock and circadian rhythm set होता है. Then उसका सोना कम हो जाता है बच्चे का as the child grows up. सो ट्रीटमेंट में बहुत कुछ है इन स्लीप. जैसे अगर बेसिक चीजें भी हम बताते हैं लोगों को कि आप कर्टन्स लगाइए विंडोज पे. यू शुड, जब आप सोते हैं योर रूम शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी क्वाइट, काम, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो लाइट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, कुछ नहीं होना चाहिए. जस्ट अ वेरी काम एनवायरमेंट. पुट वेरी हेवी कर्टन सो लाइट ना आए कहीं से एंड मेक इट अ क्वाइट रूम सो दैट इट विल गिव यू स्लीप. हाउ यू इंड्यूस स्लीप, वेरी बेसिक थिंग जो हम बोलते करने के लिए टू पेशेंट्स. फिर नाइटमेयर डिसऑर्डर्स होते हैं और बैड ड्रीम्स जिसमें पेशेंट को बार बार डिस्ट्रेस होता है. जैसे मैंने अभी बोला कि हार्ट बीट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. कॉग्निटिव डिस्फंक्शन मतलब मेमोरी खराब हो जाती है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ नाइटमेयर डिसऑर्डर. मोस्टली ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होते हैं कि बार बार नाइटमेयर्स होते हैं. सम स्ट्रेस या ट्रॉमा या एक्सीडेंट जो पेशेंट हैज फेस, तो उनको बार बार वो इवेंट्स रिपीट हो जाते हैं एज नाइटमेयर्स. इसके भी अगेन ट्रीटमेंट है, थेरेपीज है. आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जैसे हमने बात की थी कि आरईएम या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है. इसमें आपके सबसे ज्यादा मसल मूवमेंट्स होते हैं, इसमें आपको ड्रीम्स आते हैं एंड यू गो इन द डीपेस्ट स्लीप. योर बॉडी इज लीस्ट रिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग दैट हैपेंस. कुछ भी हो जाए, बॉम्ब भी फुट जाए, हम बोलते हैं कि पेशेंट उठता नहीं. दैट टाइम द पेशेंट इज इन आरईएम स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. जब हम बोलते हैं मजाक में कि अभी हम बॉम्ब भी फुट दे तो भी ये पेशेंट उठेगा नहीं, बिकॉज इज इन आरईएम स्लीप. तो आरईएम स्लीप में और प्रॉब्लम हो सकता है कि सडनली पेशेंट को पता नहीं, अगर पेशेंट गिर गया तो ही कैन हैव फ्रैक्चर्स, ही कैन हैव इंजरी, आई इंजरीज. बहुत बार पेशेंट गिर जाते हैं डीप स्लीप में और उनको पता नहीं चलता एंड दे हैव ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज. सो वैसे पेशेंट्स के बेड पे हम रेलिंग लगाते हैं ताकि वो कहीं से गिरे नहीं. जैसे हम बच्चों के क्रेडल्स रखते हैं तो बच्चा गिर ना जाए कहीं से, वैसे हम जीरियाट्रिक या एडल्ट पेशेंट्स को भी रेलिंग लगाते हैं सो दे वो गिर ना जाए कहीं से. Parkinsonism, say that there's a neurodegenerative disorder like Parkinson's, 70% of that patients also have the same problem. Again, we give them clonazepam treatment में melatonin हम देते हैं बेड टाइम पे 12 मिलीग्राम. तो ये सब हम ट्रीटमेंट एज ट्रीटमेंट देते हैं. देन देयर इज समथिंग नोन एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें आपके पैरों में ना बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होते हैं, एकिंग होता है, पेन होता है, बर्निंग, टिंगलिंग, नमनेस हो जाता है. कभी कभी लगता है कि नस पे नस चढ़ रही है व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं. बहुत बार आपके बॉडी में जब पोटेशियम की भी कमी होती है तभी भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है. इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आपके पैर मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शेकिंग होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल होता है, लेग्स बहुत हैवी हो जाते हैं. सो ऑल दिस इज सीन इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. So you can ask me questions because majority I think we have covered, and some things we have just not covered because they were too deep and too Okay. technical.
ऑलराइट, सो थैंक यू डॉक्टर पूजा। ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने हमें दिखाया हमारे ख्याल कम्युनिटी के लिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे जो डाउट्स और क्वेश्चंस थे हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स के, वो क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप अभी आपका स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद करेंगे तो मैं एक एक करके हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चंस लूंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वोरा जी के साथ, एंड देन विल गो टू अनीता जी एंड कविता जी। ऑल ऑफ देम हैव गॉन अहेड एंड रेज द हैंड। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ मेंबर वोरा जी। नमस्ते वोरा जी, गुड इवनिंग। नमस्ते विकास जी एंड पूजा जी। नमस्ते। आज एक नया सीखने को मिला आपसे कि वो स्लीपिंग पोज, अब तक तो हम ऐसा सोचते थे कि दैट हाँ शवासन में सोते तो सबसे बेस्ट रहेगा करके, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। हाँ, पर होता क्या है कि जब नींद नहीं आती है बहुत देर, तो हम करवटें बदलते रहते हैं, एक पोजीशन में हम थक जाते हैं। एक्चुअली और फिर शवासन जो है, मतलब जब आप सीधा सोते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। अगर जैसे अभी हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में एसिड बनता है, और जब आप ग्रेविटी, जब आप सीधा लेटते हैं तो वो सारा एसिड ऊपर आने लगता है। तब जब आप ओके, बोलते हैं कि जब आप लेटते हैं, बहुत लोगों को ये भी कंप्लेन रहती है कि मुझे खांसी आती है और मैं सोती हूँ तो मेरी खांसी बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन होते हैं। दिस इज बिकॉज आपको रिफ्लक्स होता है। आपका एसिड जो है पेट से वो ग्रेविटी से ऊपर आने लगता है, आपके गले में जाता है और आप खांसने लगते हैं। तो ये स्ट्रेट राइट। सोने के सब साइड इफेक्ट्स है। यू कैन गेट हाइपर एसिडिटी। आपका जो टंग है, जब आप स्ट्रेट सोते हैं तो आपका जो टंग है वो पीछे जाता है और आपके एयरवे को पूरा ब्लॉक कर देता है। तो आप ठीक से सांस ओ नहीं ले या पाते, स्नोरिंग हो जाता है। एग्जैक्टली, आई गेट स्नोरिंग, और थोड़ा हाफ स्लिप होता है, नींद आने लगती है और वो स्नोरिंग शुरू होता है। वो स्नोरिंग, मेरे स्नोरिंग से ही मेरी नींद उड़ जाती है, फर्स्ट हाँ। स्नोरिंग। हम्म। तो ओके, स्नोरिंग में, जैसे मैंने इतना आपको डिटेल में बताया था कि स्नोरिंग में ऑक्सीजन आपके बॉडी में कम जा रहा है। यस, अगर यस। अगर ये कंटिन्यूसली कम जाता गया, देन यू वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन। ब्रेन में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। आपको सिग्नल आते हैं, सडनली आप उठ जाते हैं कि मुझे सांस ही नहीं आ रही। तब आप वो एपनिया यस। स्टेज पे आते हैं, एंड दैट इज द टाइम कि आपका स्लीप हमको स्टडी करना चाहिए, मतलब टेस्ट करना चाहिए पॉलीसोमनोग्राफी के साथ, और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए अर्लीस्ट पे। So if we sleep on left side, and if we get the best deep sleep, it's good. लेफ्ट और राइट, आप कोई भी एक साइड, लैटरल पोजीशन बोलते हैं इसको, कोई भी एक साइड पे Yeah. सोएंगे तो आपकी टंग जो है वो पीछे नहीं जाएगी, आपके एयरवे को ब्लॉक नहीं करेगी। So so both positions are equal, बोथ बोथ पोजीशंस आर गुड। और left or द right. बेस्ट Okay. इज कि आप पेट पे सोए, दैट इज द बेस्ट पोजीशन। इसको प्रोनिंग बोलते हैं, Yeah. प्रोन पोजीशन। Yeah. पी आर Yeah. ओ एन, प्रोन पोजीशन। so Yeah. thank you COVID Dr. time we Pooja. saw that. या या All right, so we'll take the next question from Anita ji. Hi, good evening Anita ji, namaste. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग जी, पूजा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, पूजा जी अपने मैं हस्बैंड के लिए पूछना चाहती थी कि वो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है उनको, और शाम को डेली वो 2 पफ लेते हैं, ओके। और रात को 10 बजेंगे तो प्रॉपर 10 बजे उनको नींद आ जाती है, टीवी बंद कर दो, मेरे को नींद आई है। पर सुबह 3 साढ़े 3 बजे वो उठ जाते हैं। उसके ओके। बाद उनको नींद नहीं आती, मतलब साइड चेंज करते रहेंगे बार 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 बार। फिर वो सुबह 5:30 बजे प्रॉपर जो उनका रूटीन है उस पे उठते हैं। पर वो जो 2 घंटे हैं बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और उनके साथ मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। तो उसका क्या किया जाए? सबसे पहले तो अस्थमा है तो आप अस्थमा के मेडिसिन रेगुलरली ले रहे कि नहीं वो देखना है। नहीं, डेली डेली शाम को पफ भी लेते हैं और आपका मेडिसिन भी लेते हैं। आपका लंग फंक्शन कितना है वो भी देखना है, क्योंकि अगर लंग फंक्शन जो है अपना एज के साथ कम कम होता है, एज यू एज आपका 100 ml हर टाइम हर साल कम हो जाता है। तो वैसे आप लंग फंक्शन एवरी ईयर लूज आउट कर रहे हैं, वो हिसाब से आपका लंग कितना फंक्शन कर रहा है, आपके मेडिसिन आपके लंग को एडिक्वेट पड़ रही है कि नहीं। जैसे अगर आपका बीपी बढ़ गया तो आपका डोज बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ गया तो डोज बढ़ जाता है। वैसे ही आप लंग फंक्शन मेजर करते हैं कि आपका अस्थमा कंट्रोल में है या लंग कैपेसिटी कम हो रही है। अगर वो कम कम हो रही है लेकिन आप डोज वही ले रहे हैं, देन वो पूरा नहीं पड़ रहा है आपके लंग्स को। और अगर पूरा नहीं पड़ रहा है तो फिर वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी नींद कंप्लीट ना हो। नहीं, कंट्रोल तो उनका अस्थमा है, अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर तो उनको न्यूबिलाइजर देना पड़ता है मेरे को। हाँ, वैसे तो मतलब वही है कंट्रोल कि में है। आपने कभी आपके लंग फंक्शन चेक की है टेस्ट करके कि आपके लंग कितने काम कर रहे हैं। आपका आपके डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि पीएफटी करिए, आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करिए, जिसमें आपके लंग कितने काम
आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है क्या, मतलब डोज चेंज की या मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्या? अच्छा चलो ये भी पता कर डॉक्टर से दिखा के कर लेते हैं, हम्म, क्योंकि ये जो 3 साढ़े 3 उठ जाना है ना वो भी ठीक नहीं है, फिर सो नहीं पाते हैं। राइट। तो ये लंग चल फंक्शन टेस्ट जो है आप करवा सकते हैं, उसमें हमें ठीक पता है। चलेगा कि आपके मेडिसिन जो है वो ही रखने हैं, चेंज करने हैं, मेडिसिन का टेक्निक चेंज करना है, और मोड ऑफ खराटे मेडिसिन भी चेंज बहुत करना है। जोर जोर से मारते हैं, खराटे भी बहुत हाँ, जोर से मारते हैं। तो अगर वो खराटे मार रहे हैं फिर उसका तो डायग्नोसिस ही पूरा अलग है, फिर हमें स्लीप स्टडी करनी पड़ती है वो डायग्नोस करने के लिए कि खराटे मतलब एपनिया जो है उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी वो कितनी है और उनको कैसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि खराटे का ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, इट इज अ मशीन जिसको हम सीपैप बोलते हैं, चल ठीक जो है, मैंने चेक आपको करवा बताया देते था। हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूजा। अगला क्वेश्चन हम लेंगे प्रकाश जी से। गुड इवनिंग प्रकाश जी। प्रकाश जी इज कॉलिंग अस फ्रॉम इंदौर। गुड इवनिंग डॉक्टर पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी एक्सटेंसिव नॉलेज। अल्दो पूरा थैंक समझ यू। में नहीं आया जैसा विकास जी ने कहा, नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें बट आई आपको शैल शॉर्ट सॉर्ट में ऑफ भी जस्ट समझाई। आई शैल जस्ट टेल 1 2 3 4 थिंग एंड देन यू कैन से हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके। तो मोस्ट टाइम तो मैं ठीक ठाक सोता हूँ, बट जब भी खर्राटे मारता हूँ तो मेरी मिसेस मेरे को धक्का दे देती है। वो धक्का देने के बाद मेरा स्नोरिंग बंद हो जाता है, ऐसा उसका कहना है, एंड देन प्रोबेबली फिर 2-3 घंटे नहीं आता है। सो दिस इज वन थिंग। इसको बोल दीजिए फिर मैं अगला बार बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंस, मतलब हर वक्त तो खराटे मारता हूँ, जब भी मारता हूँ मेरे को धक्का देती है। आई थिंक पोजीशन चेंजेस एंड यस, तो फिर दोनों ही आराम से सोते हैं। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, कि आप अगर एक साइड पे सो रहे या पेट पे सो रहे तो खराटे नहीं मारेंगे तो आपका, क्योंकि टंग पीछे नहीं गिरेगा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो खराटे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां आपको नींद भी नहीं आती या आपको उठना पड़ रहा है बार बार या वॉशरूम भी जाना पड़ रहा है, तो फिर आपके खराटे जो है वो आगे बढ़ गए हैं और स्टेज ऑफ स्लीप एपनिया हैज इंक्रीज, और दैट इज द टाइम कि जब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, थैंक यू। नहीं, नॉर्मली रोज तो खराटे नहीं मारता हूँ, पर जिस दिन मारता हूँ उस दिन बीवी मेरे को धक्का मारती है, एंड फिर मेरी नींद तो डिस्टर्ब नहीं, मेरे को पता चलता कि उसने मेरे को धक्का मारा था। हाँ, तो दैट मीन्स यू आर इन सच डीप स्लीप कि आपको वो भी नहीं पता चल रहा है और आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। द सेकंड थिंग इज कि आई एम 70 इयर्स ओल्ड, 70 साल का हूँ मैं, और रात को मोस्ट ऑफ में एक बार उठना पड़ता है, कभी 2 बार उठना पड़ता है, पर उठने के बाद में फिर मैं सो जाता हूँ ठीक से। देन इट इज ओके। अगर आपको रात को वॉशरूम के लिए एक आध बार उठना पड़ रहा है देन इट इज ओके। अगर बार बार उठना पड़ रहा है देन नहीं, बार बार तो नहीं उठना पड़ता है, एक बार उठता हूँ और फिर नींद लग जाती है, मतलब थोड़ा सा 5-10 मिनट। देखो एक आध बार तो नॉर्मल है किसी के लिए, अगर कोई ज्यादा पानी पीता है सोने से पहले तो दिस इज नॉर्मल, फिर इसमें हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं अनलेस अगर बहुत बार जाना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। तीसरा ऐसा कि ठंड के दिनों में 7-1 बजे नींद खुलती थी अपने आप ही, 7 साढ़े 7, और अब गर्मी शुरू हो गई तो 5:30 बजे अपने आप ही नींद खुल जाती है। तो ये 2 घंटे कम हो गई नींद, ऐसा लगता है मेरे को। वेदर चेंजेस की वजह से क्या होता है कि गर्मी की वजह से आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, इतना डिहाइड्रेशन होता है, तो दैट टाइम आपको बहुत अच्छा हाइड्रेशन रखना है विद दिस हीट हॉट वेदर में। आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अच्छे आपको पानी, सिर्फ पानी नहीं पीना है, आपको पानी में जो ORS आता है या इलेक्ट्रल आता है वो पाउडर मिक्स करके पीना है, क्योंकि आप जब स्वेट करते हैं तो स्वेटिंग में ना आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लॉस हो जाते हैं, तो ये मिनरल हमको सिर्फ पानी से नहीं मिलते। तब आप ORS या इलेक्ट्रॉल या एनर्जाल डालेंगे उसमें, एनर्जाल तो सारे इलेक्ट्रोलाइट वापस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रहेगी। तो आपको यू हैव टू बी वेरी हाइड्रेटेड, तो इससे दैट विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट कि आपकी नींद शायद और अच्छी आए थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए। थैंक यू। द लास्ट थिंग इज कि टेम्परेचर मैटर्स। तो रात को ऐसा लगता है कि चादर नहीं चाहिए, पर सवेरे सवेरे 3-4 बजे ठंड लगने लगती है, तो फिर चादर ओढ़ने की इच्छा होती है। दैट इज द लास्ट पॉइंट, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। यस, टेम्परेचर डज मैटर। जैसे मैंने अभी बोला कि ठंड में बॉडी को बहुत, फिर आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ वार्म, अदरवाइज आपके क्या बोलते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाती है, तो आपको वार्म रखना पड़ता है खुद को। लेकिन हाँ, जब हॉट वेदर है तो आपको खुद को फिर बहुत हाइड्रेशन रखना पड़ेगा फर्स्ट। तो फिर वेदर मैटर्स, वो भी आपके स्लीप को अफेक्ट करता है वेदर। तो इंदौर में तो सवेरे सवेरे ठंड रहती है, सो वी आर वेरी हैप्पी। सवेरे और शाम इंदौर में बड़ी सुकून भरी रहती है। थैंक यू माय डॉक्टर, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द डाउट्स। थैंक यू। Okay, so Dr. Pooja, now we will definitely go ahead and take another question from Rama Tuliji, and she has a question. She has been raising her hand for a long time. Yeah. Namaste, Rama ji. नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूजा, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। डॉक्टर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ही सोती हूँ नींद तो आती है, लेकिन मेरा ब्रेन घूमता है, मैं साउंड स्लीप नहीं सो पाती। ब्रेन घूमता है मतलब इतना ज्यादा घूमता है पूरा ब्रेन, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, उस वक्त गायत्री जाप भी कर लूँ, कुछ भी, लेकिन ब्रेन इतना घूमता है कि चैन नहीं आता मुझे। आपको चक्कर आते हैं? नहीं 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 नहीं, ब्रेन घूमता है, जैसे कह सकते हैं चल रहा है, दिमाग चल रहा है, किसी भी बात को लेके तो मतलब चलता है। ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो हाँ। आपका ब्रेन रिलैक्स्ड ही नहीं है, मतलब दैट इज हाँ, ओवर रिलैक्सिंग नहीं, मैं मतलब फ्रेश नहीं होती, अगर उठती हूँ तो मैं हाँ। फ्रेश नहीं हूँ। ओके, तो वही जैसे मैंने आपको बोला था कि स्लीप हाइजीन में जब आपका ओवर थिंकिंग होता है तो आपको 1 घंटे पहले ना आपको जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपको मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आपको कोई आप जाप ओरली कर सकते हैं या मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग कर सकते हैं आंख बंद करके। दैट विल हेल्प टू रिलैक्स योर ब्रेन। आपको ना ब्रेन रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज या योगा जो अभी सिखा रहे हैं आपको ख्याल में, तो ये सब आपको करना है ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग में आपका ब्रेन चल रहा है और वो आपके स्लीप हाँ, सेंटर को बंद ही नहीं होने दे रहा। आपका स्लीप बस सेंटर ट्राई यही कर रहा है प्रॉब्लम बंद है होने मेरी। को और वो बंद ही नहीं होने दे रहा बिकॉज आपका ब्रेन चल ही रहा है, आप उसको रिलैक्स नहीं हाँ। कर पाते। उसको रिलैक्स करने के लिए आपको 1 घंटा एटलीस्ट मेडिटेशन करना चाहिए रात को। डीप, जैसे मैंने आपको बोला था, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा जो आपको सिखा रहे हैं, एंड डीप ब्रीदिंग मतलब इनहेल 10 सेकेंड्स के लिए पकड़िए, फिर एक्सहेल करिए। ये आपको रिपीटेडली करना है रात को सोने के पहले 1 घंटा करिए, आपका ब्रेन काफी रिलैक्स हो जाएगा। मैं तो टेबलेट भी खाती हूँ, जिस दिन टेबलेट खाती हूँ उस दिन रिलैक्स ले लेती हूँ, लेकिन बिना टेबलेट के अगर मैं सोती हूँ तो वही बस ब्रेन चलता है, एक ही प्रॉब्लम है मेरी बेचा। तो आप थोड़े दिन टैबलेट ले सकते हैं, बट उसके बाद आपको आपका जो स्लीप हाइजीन और स्लीप साइकिल है वो धीरे धीरे आपको चेंज करना है, आपका रूटीन। और फिर धीरे धीरे आप जो रोज टैबलेट ले रहे हैं उसको आप 1 दिन छोड़ के लीजिए, 1 दिन ऐसे ऑल्टरनेट डे लीजिए, उसके बाद ऑल्टरनेट डे, उसके बाद फिर डोज थोड़ा हाफ विद डॉक्टर्स एडवाइस, फिर उसके बाद डोज थोड़ा हाफ करके देखिए। तो धीरे धीरे आप ऐसे टेपर ऑफ हो जाएंगे, धीरे धीरे ही हो अच्छा, जाएगा मैं ये थोड़े बस। दिन कंटिन्यूसली, हाँ, थोड़े दिन आप कंटिन्यूस मत लीजिए, 1 दिन छोड़ के लीजिए, 1 आध दिन बीच में लीजिए ही मत, 1 दिन छोड़ के स्टार्ट करिए। ठीक। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, तो आपको वीन ऑफ करना ही मुश्किल हो जाएगा स्लीपिंग पिल से। ओके, तो इसके बाद वी कैन गो टू मोर ऑफ आवर मेंबर्स, बट बिफोर दैट मैं डॉक्टर से परमिशन लेना चाहता हूँ। इट्स ऑलरेडी 6:30, शाम के 6:30 बज गए हैं। आई एम श्योर डॉक्टर हैज अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड so if you would allow, I'll take a few questions, We doctor, from can the community. continue 5 minutes more. Definitely. Yeah. So I'm going to unmute someone by the name of Zoom user. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम। यस मैम, बताइए। आपने अपना हैंड रेज किया है। यस, ऑरेंज कलर के ब्लाउज में है आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। विकास जी, मैं भी बात करना चाहती हूँ। यस मैम, आप क्वेश्चन पूछिए। मैं रीटा सिद्धू हूँ और मेरी एज 58 है और मेरे को स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जब मैं 42-43 में थी तभी से थी, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट ये है कि मेरी ओवर थिंकिंग है और मैं इमोशनली काफी वीक हूँ। तो मैं जॉब करती थी, वहां जरा भी कोई टेंशन होती थी तो वो मेरे माइंड में घूमती रहती थी, तो मेरे को थोड़ा उस रात नींद नहीं आती थी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर अभी तो इनफैक्ट मैंने जॉब भी छोड़ दिया। तो फिर लास्ट कुछ टाइम पहले मेरे को 2 महीने लगातार नींद नहीं आई थी। मैंने कनाडा में थी, जो भी ट्रीटमेंट लिया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं इंडिया आई। इंडिया में अभी मैं गंगाराम हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मेरे को डॉक्टर ने दिन में 2 बार स्लीपिंग पिल्स बोली है, एल्प्लेक्स खाने को, एक रात को बोली है, एक ट्राइप्टोमर बोली है, एक सॉरी 1 मिनट और बताइए, और एक मेरे को लिट्रावेट 5 mg ये भी बोली है। ये सब खा के भी मेरे को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि पीछे मेरे को इतना एंजाइटी हो गया था, डिप्रेशन हो गया था। कोई रीजन नहीं है, घर में सब ठीक है, पर मेरा शायद ओवर थिंकिंग है और जिसकी वजह से मैं बहुत मेरा माइंड चलता रहता है। आप फिर स्लीपिंग पिल्स मत लीजिए। अगर इफ यू फील दैट आपकी एंजाइटी बढ़ रही है या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपकी जो चीजें हैं, व्हाई यू आर हैविंग दैट एंजाइटी और व्हाई यू आर गोइंग टू डिप्रेशन, एक तो प्रॉब्लम है कि सोशल स्टिग्मा होता है एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट
कि उनको एंजाइटी हो रही है या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको लगता है नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है। जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली अपने ब्रेन के लिए और ब्रेन फंक्शन के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि एंजाइटी या डिप्रेशन है, देन आपको काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही है, किस चीज की हो रही है, इसके रेगुलर काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए। और आपको एक्सरसाइजेस करने चाहिए। देयर आर सम ब्रेन एक्सरसाइज भी होते हैं, जैसे हम फिजिकली करते हैं वैसे ब्रेन एक्सरसाइजेस होते हैं, ये भी आपको काउंसलिंग सेशंस में ही मिलते हैं। तो इट विल बी बेटर कि आप टू अ साइकियाट्रिस्ट और टू साइकोलॉजिस्ट यू गो फॉर काउंसलिंग की एंजाइटी किस किस चीजों से हो रही है। अब हम जल्दी से लास्ट के 2-3 क्वेश्चन लेंगे। वी हैव कविता जी हु हैज रेज्ड अ हैंड। आई एम गोइंग टू अनम्यूट हर। कविता जी, आपका क्वेश्चन डॉक्टर पूजा के लिए। हेलो, गुड इवनिंग सर एंड मैम। पूजा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी मदर जो है वो 82 प्लस हैं, प्लस वो उनको नींद नहीं आती है, उनको नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो सो नहीं पाती हैं। उसके कारण वो कुछ मेमोरी उनकी लॉस टाइप हो रहा है। वो कुछ कुछ बोलती हैं उल्टा सीधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका क्या। बाकी सारी उनके पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं। यूजुअली मेमोरी लॉस जो है वो पार्किंसंस या डिमेंशिया में स्टार्ट होता है, जिसमें आपके जो बेसिकली ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो आपके मेमोरी, फोकस, ये सब के लिए, कोऑर्डिनेशन, थिंकिंग के लिए हेल्प करते हैं। यूजुअली पार्किंसंस जब स्टार्ट होता है तो ये न्यूरॉन्स बहुत कम होते जाते हैं, बहुत फास्ट एज हो जाते हैं और आपको मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप उनका एक बार ब्रेन इमेजिंग या ब्रेन MRI करवा के एक बार एक न्यूरोलॉजिस्ट से दिखवाइए, ताकि उनको पार्किंसनिज्म या अल्जाइमर्स या डिमेंशिया है तो उसका ट्रीटमेंट है फिर, क्योंकि उसके हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लगते हैं। दैट विल हेल्प अस स्लीप। तब स्लीपिंग पिल्स काम नहीं आएंगे उनके। पर डॉक्टर साहब, वो जो है जैसे मतलब, पर ये है कि बात करते करते कुछ पिछला बोलती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं। पर उनको थोड़ा सा ये है कि जैसे कोई उनके पास बैठा रहे, उनको छोड़ के नहीं जाओ। मतलब किसी, जैसे मेरा ब्रदर है, उनको बोलते हैं कि मेरे पास बैठे रहो। भाभी है, उनको कहते हैं पास ही बैठे रहो, मेरे को छोड़कर मत जाओ। जबकि मेड्स रखी हुई है, सब कुछ है, पर फिर भी उनको ये डर रहता है कि मेरे पास पर रहो, मुझे पकड़ लो। वो तो है। इट इज सम टाइम कि दे नीड एन इमोशनल कनेक्शन आल्सो विथ योर फैमिली मेंबर एंड नॉट अ मेड, बिकॉज मेड या आउटसाइडर इज नॉट गोइंग टू गिव हर दैट दैट इमोशनल फीलिंग दैट आई एम विथ यू। तो वो तो फैमिली मेंबर से ही आएगी। मे बी दैट इज वाई कि वो आपको रुका के रखते कि मेरे साथ रहिए। बट सो दैट इज समथिंग, एंड ऑन एन इमोशनल लेवल ऑल्सो यू हैव टू सपोर्ट योर एल्डर्स, क्योंकि उनको जरूरत है नॉट ऑफ मेड बट ऑफ फॉर यू। they want you to be available for them emotionally. You understand कि what's happening, या are they overthinking, या उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, या उन्हें कोई प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमको ही दुनिया भर की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। when you are old or aging, you also face a lot of psychological issues. you feel alone, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है, मैं किससे बात करूं। तो ये इससे भी ब्रेन ओवर थिंकिंग, और then it starts to memory loss. so it all is like ये सब इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है। सो इट्स गुड। अगर हमका मेमोरी लॉस ज्यादा हो रहा है, देन आपको फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए एंड आपको पार्किंसनिज्म और अल्जाइमर्स के लिए डायग्नोस करना चाहिए। Thank you very much, doctor. One last question from Mr. Vijay Paul. I see a lot of other members जिन्होंने अपना हैंड रेज भी किया है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें अभी ये सेशन रैप अप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको पता है ये स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स और हमारे फैमिली मेंबर्स को है। इसके बारे में अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है तो हम आपसे डॉक्टर पूजा के डिटेल्स भी शेयर करेंगे। आप डेफिनेटली डॉक्टर पूजा के साथ कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनली, एंड शी विल बी एबल टू फाइंड a solution for you, and you can sleep better and have a healthy aging life. So we'll take the last question from Mr. Vijay Paul. Namaste Vijay ji. Namaskar. Thank you Dr. Pooja for giving many very important informations for all of us. मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। आपने मेंशन किया कि जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और एक्सरसाइज करिए। क्या एक्सरसाइज जरूरी है, या मॉर्निंग 40-45 मिनट वॉक विच आई डू is sufficient, or you have to do exercise only? एक्सरसाइज का मतलब वॉक इज ऑल्सो एक्सरसाइज ओनली। तो यूजुअली मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि नॉर्मल वॉक आप करिए, 15 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद आप बढ़ाइए ग्रेडेड सेशन। जैसे आज 15 मिनट चले, कल 20 मिनट चले, फिर 25 मिनट चले, गो अप टू 45 मिनट्स और 1 आवर। एंड डिपेंडिंग ऑन योर पेस, आपको मैराथन नहीं दौड़ना है, बट आपको बेसिकली आपके मसल मूवमेंट्स जो है
हम एक्सरसाइज मतलब क्या कि नॉर्मल वॉक में भी आपके मसल एक्टिविटी जो है, आपके पैर चल रहे हैं तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब मसल मूवमेंट्स हो रहे हैं, और उसके से आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा रह रहा है। तो मसल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाए या आप मैराथन दौड़े, आप नॉर्मल वॉक करिए 15 से 20 या आधे घंटे, मिनट 30 मिनट्स एवरी डे, इवन दैट इज सफिशिएंट। नहीं, मैं वो करता हूँ, अराउंड 50 मिनट्स आई गो एवरी डे। हाँ, 4 किलोमीटर करीब हो जाता है। एक मेरा जो एक सेकंड प्रॉब्लम है, चाहे वांट टू टेल यू, मैं ना मेरे कुछ वजह से 12 बजे ही सो पाता हूँ और सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे वॉक पे चला जाता हूँ। तो उस 5 घंटे के दौरान में कम से कम 1 या 2 बार मेरे को नींद सा टूटता है, और जैसा आपने बताया कि घड़ी नहीं देखना, वो मैं घड़ी देखने लग जाता हूँ और फिर लगता है 5 बजे का अलार्म बजे और मैं उठूँ। तो इसको कुछ किस तरह से कंट्रोल करें तो इसको? आप रात को सोते किस समय पे, कब सोते अराउंड 12 o'clock आई स्लीप एंड 5 o'clock आई गेट अप। 12 बजे तक आप क्या करते हैं, मतलब रात को 9 बजे से 12 बजे तक आप क्या करते हैं? 9 बजे के आसपास डिनर करने के बाद में बस थोड़ा टीवी शीवी ये वो बच्चों के साथ में बातचीत, बिटिया के बच्चे हैं उनके साथ में काफी थोड़ा समय बीत जाता है, तो वही सोने नहीं देते 12 बजे तक। अच्छा, ओके। बच्चों के आई विल एडवाइस कि आप शाम को भी एक वॉक शुरू करिए। खाना खाने के बाद आप जाइए 1 घंटे का, उनके साथ उनको बोले बातें करनी है तो चलिए पार्क में जाइए, उनके साथ वॉक करते करते बात करिए और 1 घंटा वॉक करिए। आपकी बॉडी को थकाइए वो 1 घंटा, तो यू कैन वॉक एंड टॉक विद देम। तो आफ्टर डिनर स्टार्ट वन वॉकिंग सेशन अगेन नाइट में, एंड उससे आपका काफी इंप्रूवमेंट्स आएंगे। यू विल बी एबल टू स्लीप, क्योंकि तभी भी एक्सरसाइज होगी, मसल एक्टिविटी होगी, तो आपके मसल्स मूवमेंट्स बेटर होंगे। एंड देन व्हेन यू आर टायर्ड, ऑब्वियसली आपका ब्रेन जो दैट विल गेट टायर्ड, फिर यू फील दैट, फिर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो शाम को भी एक वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए सेशन। मैं करूंगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी और मच। कोई भी बेवरेजेस या अल्कोहल या कुछ लीजिए मत शाम के टाइम, दैट आई डोंट टेक, दैट आई डोंट 6 बजे के बाद। या थैंक यू। Okay. So already it's 6:45, or we have gone beyond our time limit for today's session. So I would like to end this session first of all by thanking Dr. Pooja. आपने आके बहुत सारे जो हमारे questions थे और doubts थे वो आपके presentation में और हमारे Q&A session में clear किए, और our members definitely appreciate all of this, and if you do, please show her a big thumbs up so that she knows that we really appreciate the time that she has got ahead and spent with us. Thank you so much, Dr. Pooja. It was a wonderful session, and we would like also to get some details where we can get in touch with you. अगर हमें और आपसे बात करनी है, कंसल्टेशन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? Okay, so I'll send you the link and the digital card, so then you can send it to them if anyone wants to get in touch for an online consultation or a sleep study test. Online consultation really works because you know, something that COVID has even taught us a few lessons is that हम online consultation कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार doubts होते हैं और हम किसी के पास जाते नहीं हैं because of, you know, we are afraid that it could be something big, और we don't take care of our health. जैसे आपने बोला, हम preventive पे हमें concentrate करना चाहिए, ना कि कोई emergency हो और उस पे जाके हमें देखना चाहिए। तो टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ही अच्छा और सरल मेथड है डॉक्टर पूजा के साथ कांटेक्ट करने के लिए, और उसके भी डिटेल्स हम ख्याल कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। तो बिफोर आई गो, थैंक यू वंस अगेन, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस on our YouTube channel, if you want to be a part of the Khayal community, you can go to our website, that is www.khayal.com. That's KHYAAL.com, और वहां पे आप कम्युनिटी पेज पे जाके अपने नाम और डिटेल्स डाल सकते हैं। यू हैव टू बी 55 years and above to be a part of the Khayal community, and we have community members from all over the country. We meet every day in the evening at 5:30 and have different activities. And this was a wonderful evening that we had spent with our Khayal community members and Dr. Pooja talking about sleep disorders. So good night, everybody, I would say, and have a great night of sleep today after listening to this session. I will see all of you tomorrow for kal ka jo hamara session hai, Elder Yoga with VS Wellness at 5:30 in the evening. Goodbye, everybody, and good night.